Hello everybody, this is Yasir Ali on the platform of One-to-One Tuition, and today I am in front of you. I have brought to you the session 2 of chapter 2. In this session, as previous video, I told to you that I will discuss about heat zones of the earth. Before that, what we have learned in previous video, that's recap first. In previous video, we was learning about the globe axis and latitudes. So आगे बढ़ने से पहले हम इन सब चीज़ों को पहले रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. देन वी विल मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक. ग्लोब. Globe is true representation of the earth and it shows the fundamental features of the earth like water bodies and land bodies. Water bodies separated into 5 important oceans and land bodies separated into 7 important continents. Later we have learned about the axis. Axis as an imaginary line which passes through from the North Pole to South Pole, and it helps Earth to rotate on its axis. Now, and after that we have learned about the latitudes. Latitudes are imaginary line which moves west to east across the globe, and they are 180 in numbers, 90 latitudes in each hemisphere. Important latitudes. What are the important latitudes? 0 degree equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. So these important latitude we have learned in previous video. Now before starting the heat zones of the earth, I'll ask one thing. Just observe this figure and see all latitudes located labeled here in this figure. Can you imagine here these all latitudes separated या divided the earth into different parts. Have you observed this? आपने देखा, आपने समझा इसको? Yes. So that these are known as important latitudes. I told you in last session कि why they are called important latitudes. इनको important latitude क्यों कहा जाता है? क्या पर्पज है इसके पीछे? इसके पर्पज ये है कि ये अर्थ को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? देयर इज अ रीजन. ये कर रहे हैं इसलिए ये अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं हीट जोन्स में, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग इनको लोकेशन दिए. अंडरस्टैंड? अच्छा, वन थिंग, टेल मी बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट हीट जोन, जस्ट आई एम आस्किंग, आई एम वेरी क्यूरियस टू टेल, and I hope you also will very curious to know about heat zones on the earth and all about. So first thing you tell me, do all the places of the earth experience the same climate? No. Do they all get the same amount of heat from the sun? No, obviously no. Acha, one thing, do they all faces the same type of cold climate throughout the year? No, obviously no. अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टूपिड से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इनका कोई कनेक्शन है हमारे टॉपिक? यस स्टूडेंट, देयर इज are directly connected. These questions are directly connected are today's topic, which is heat zones of the earth. Direct connection, because heat zones of the earth का जो separation है, जो division है according to latitudes, वो किस पे बेसिस है? वो बेसिस है रिसीविंग द हीट फ्रॉम द सन. मतलब अर्थ के ये सारे पार्ट जिस अमाउंट में हीट रिसीव करते हैं सन से, अकॉर्डिंग टू दैट ये हीट जोन्स जो है सेपरेट किए गए, डिवाइड किए गए. नाउ आई एम टेलिंग हियर वन बाय वन. आई विल डिस्कस अबाउट ऑल हीट जोन्स, बट वन बाय वन. फर्स्ट वी विल लोकेट द हीट जोन्स. कौन सा हीट जोन क्या है और कौन सा हीट जोन कहां पर है, पहले हम ये इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे
कि आगे, ठीक है। सो यू कैन सी इन मिडिल, सी इक्वेटर, here you can see this part, the area between tropic of cancer and tropic of capricorn, this is known as torrid zone। इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है टॉरिड जोन का। और इसकी लोकेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है बिटवीन, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे से और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का भाग, ऊपर का पार्ट, ये सारा पार्ट कहलाता है टॉरिड जोन। इसको टॉरिड जोन का नाम दिया गया। अब क्यों टॉरिड जोन का नाम दिया गया है, लेट वी डिस्कस आफ्टर दिस। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। यू कैन सी द टेम्परेट जोन, आपको दिख रहा होगा दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। इसकी लोकेशन क्या है, टेम्परेट जोन लोकेटेड द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल and tropic of cancer in northern hemisphere and area between tropic of capricorn and antarctic circle in southern hemisphere are known as temperate zone। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का पार्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, टेम्परेट जोन। इनको टेम्परेट जोन का नाम दिया गया है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड सदर्न टेम्परेट जोन, या नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन दे कंसिस्ट ओनली वन टेम्परेट जोन। क्लियर, ओके, दिस इज टेम्परेट जोन लोकेशन। नाउ कम टू फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहां पर होता है, फ्रिजिड जोन एरिया की बात करते हैं हम। फ्रिजिड जोन इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड क्लोज टू द नॉर्थ पोल, एंड सदर्न हेमिस्फीयर एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड क्लोज टू द साउथ पोल, दीज पार्ट नोन एज फ्रिजिड जोन। इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। यहां पर भी आप नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ फ्रिजिड जोन कह सकते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ फ्रिजिड जोन कह सकते हैं। क्लियर, नाउ रीड अवेयर अबाउट द लोकेशन ऑफ फ्रिजिड जोन। मतलब सारे हीट जोन्स के एरिया आपको समझ में आ गए होंगे, पार्ट समझ में आ गए कि अर्थ में, ग्लोब पर कहां पर कौन सा हीट जोन्स है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि वाई टॉरिड जोन इज टॉरिड जोन, वाई टेम्परेट जोन इज टेम्परेट जोन, वाई फ्रिजिड जोन इज फ्रिजिड जोन, वाई फ्रिजिड जोन इज नॉट टेम्परेट जोन, एंड वाई टेम्परेट जोन इज नॉट टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन क्यों, अलग नाम क्यों नहीं दिया गया, लेट्स सी दिस थिंग। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को टॉरिड जोन क्यों कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, टॉरिड जोन इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का मिडिल पार्ट है। अब अगर हम देखते हैं कि सन, इसके साइड में अगर सन है, सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती हैं, तो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब टॉरिड जोन वाला पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ती है, बिल्कुल सीधी रेज पड़ती है, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, एंड एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर the sun's rays directly comes on this area, मतलब टॉरिड जोन में। so that cause of that, मतलब this area of the earth which is known as torrid zone gets maximum amount of heat from the sun rather than the other zones, so that this part of the earth experience very hot climate, मतलब हॉटेस्ट क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये एरिया जो है सबसे ज्यादा गर्म क्लाइमेट मिलती है यहां पर, सो दैट इट इज नोन एज टॉरिड जोन, इसीलिए इसको टॉरिड जोन का नाम दिया गया है। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, so that the climate of this area means torrid zone is very extremely hot, so that is known as टॉरिड जोन, इसलिए इसको टॉरिड जोन का
नाम दिया गया। नाउ कम टू टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन को हम देखते हैं। टेम्परेट जोन की लोकेशन में पहले ही बता चुका हूं, इट इज लोकेटेड above the torrid zone in northern hemisphere and southern hemisphere located below the torrid zone. अब इस पार्ट की हम बात करते हैं। This part of the earth या this zone of the earth receive the sun's rays slanting, मतलब डायरेक्ट नहीं, slanting. sun's rays falls on this part of the earth slanting, मतलब slanting पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है। So this part of the earth receive less amount of heat rather than the torrid zone. Torrid zone के पीछे this part of the earth कम heat receive करता है sun से, because the sun rays falls there slanting, not straight. And cause of this area of the earth experience moderate climate. Obviously जब हम धूप में खड़े होते हैं, सपोज हम धूप में खड़े हो जाए, डायरेक्ट सन हमारे ऊपर हो, वी फील हीट, मैक्सिमम हीट, हॉट फील करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट सन हमारे सर के ऊपर होता है। अब अगर हम थोड़ा सा हट के साइड में खड़े हो जाए जहां पे डायरेक्ट सन की रेज नहीं पड़ रही, सनलाइट नहीं पड़ रही, तो हमको उतनी हीट फील नहीं होती है। इन द सेम थिंग इज हियर, टेम्परेट जोन, दे आर नॉट रिसीविंग डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, दे आर रिसीविंग सैलेंटिंग, so that they are experience less amount of heat of the sun. इसीलिए क्या होता है कि this part of the earth experience moderate climate. क्या कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब neither too hot nor too cold, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, मतलब adjustable for the human beings. And cause of this part of the earth mostly thickly populated, thickly habited. Most of the people wish to live in these parts of the earth. Understand? So that this is known as temperate zone, because it experience moderate climate. Now come to know about the frigid zone. Frigid zone, जैसा कि नाम ही frigid zone है, means cooled हो, cool ना, so why does it known as frigid zone? I hope you would be guessing, because this part of the earth do not receive proper sunlight, the sun rays do not reach there properly, and sometimes they reach but they don't have the full of intensity. जैसे कि टॉरिड जोन में जो रेस पड़ती है सन की, उनकी इंटेंसिटी होती है, फ्रिजिड जोन में जो पहुंचती है उनमें वो इंटेंसिटी नहीं होती है, बिकॉज द सन रेज फॉल्स देयर, पहली बात तो पहुंचती नहीं है, जब पहुंचती नहीं है तो दे आर वेरी वेरी सैलेंटिंग, उनमें वो फुल ऑफ इंटेंसिटी नहीं होती है जो उस प्लेस को हीट कर सके, उस प्लेस को थोड़ा सा भी हीट दे सके। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि फ्रिजिड जोन, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, दे रिसीव लेस या don't get the heat of the sun, उनको हीट सन की मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सन रेज डायरेक्टली पहुंचती ही नहीं है, पहुंचती भी है तो वह सैलेंटिंग होती है, समटाइम दे डोंट रीच देयर, पहुंचती ही नहीं वहां पर, सो दैट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। कूल हमेशा कूल रहता है, हमेशा कोल्ड रहता है। they both places experience very extremely cold climate throughout the year, cause of not receiving proper sunlight, not receiving the sun rays with full of intensity, so that these both part of the earth known as frigid zone, इसीलिए इनको frigid zone कहा जाता है। I think आप सबको समझ में आ गया होगा कि what are the heat zones, where does they located, and what are the characteristic of special feature of these heat zones, उनको क्यों टॉरिड जोन बोला जाता है, क्यों टेम्परेट जोन का नाम दिया गया, क्यों फ्रिजिड जोन के का नाम दिया गया है। So students, I hope you would be understanding all the things. If still confusion, watch this video twice and thrice and then get better idea about this.
So students, now time to some practice work. There are some questions on the screen. Write the answer of these all questions in your notebook properly. In next session, I will explain about the longitude. What are the longitudes, which is vertical lines. Till then, thank you so much. Have a great day ahead.